Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is contribution of Muslim scientists. What is the contribution of Muslim scientists in the field of chemistry? So let's start. Jabir ibn Hayyan. Jabir ibn Hayyan was born in 721 in Iran and was died in 803 AD in Kufa. Jabir ibn Hayyan is known as the father of chemistry. Jabir ibn Hayyan is known as the father of chemistry, and he was the first scientist who has well-established lab. He invented many experimental methods such as filtration, sublimation and distillation. He prepared hydrochloric acid, nitric acid and white lead. This is just a summary of Jabir ibn Hayyan's contribution. He is known as the father of chemistry. अब आते हैं अल-राज़ी की तरफ. Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria al-Razi was born in 864 AD in Iran and was died in 930 AD. He was physician, chemist and philosopher. He wrote about 26 books. Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria al-Razi wrote about 26 books, but his most famous book is Al-Asrar. In this book, he discussed various chemical processes. Al-Asrar में उन्होंने बहुत सारे chemical processes को discuss किया. He divided chemical compounds into 4 types: vegetables, animals, derivatives and minerals. Al-Razi ने chemical compounds को 4 अक़साम में तकसीम किया: vegetables, animals, derivatives and minerals. He divided chemical compounds on the basis of their living and non-living origin. और इसी का आइडिया बर्ज़ीलियस ने यूज़ किया और उसने केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का टर्म क्या किया. बर्ज़ीलियस ने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि आजकल हम एज सेपरेट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री स्टडी करते हैं. एंड अल-राज़ी प्रिपेयर्ड अल्कोहल बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. ये हो गए अल-राज़ी. अब आते हैं अल-बेरूनी की तरफ. Al-Biruni was born in 973 in Uzbekistan and he died in 1048 AD in Afghanistan. Al-Biruni contributed in the field of physics, metaphysics, mathematics, geography, astronomy and history. In chemistry, Al-Biruni has sound knowledge about chemical processes and chemical combinations. ये तो हो गई इसके अदर फील्ड्स ऑफ साइंसेज में अल-बेरूनी की कंट्रीब्यूशन. केमिस्ट्री में उसको केमिकल प्रोसेसेस और केमिकल कम्बिनेशंस का बहुत अच्छा इल्म था. एंड उसकी एक बुक है अल-सईदाना. अल-सईदाना ही डिस्क्राइब्ड मोर देन 700 डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी. उसकी एक बुक है अल-सईदाना जिसमें इसने 700 डिस्क्रिप्शंस ऑफ ड्रग्स बताए हैं हमें और उसकी ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट्स बताए हैं. ही डिटरमाइंड द डेंसिटीज ऑफ सब्सटेंसेस. अल-बेरूनी डिटरमाइंड द डेंसिटीज ऑफ सब्सटेंसेस. अब आते हैं इब्न सीना की तरफ. Abu Ali Sina or Ibn Sina was born in 980 AD in Uzbekistan and was died in 1037 AD. Ibn Sina is known as Aristotle of the Muslim world. इसे मुसलमान दुनिया का अरिस्टोटल कहा जाता है. He contributed very much in the field of medicines. इनकी कंट्रीब्यूशन मेडिसिन में बहुत ज़्यादा है. ही कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिनल केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड फिलॉसफी. He was the first scientist who rejected
the idea that base metals can be converted into gold. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मुसलमानों ने 3 गोल सेट किए थे। उनमें से एक ये था कि टू कन्वर्ट बेस मेटल्स इनटू गोल्ड, लेकिन वो इस तरह करने में नाकाम हुए। और ये इब्न सीना फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि बेस मेटल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। बेस मेटल सच इज लीड, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, such kind of base metals cannot be converted into gold, and he was the first scientist who rejected the idea that base metals can be converted into gold. He rejected that idea. He wrote hundreds of books which were taught in Europe for centuries. Ibn Sina is known as Avicenna in Europe. तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने मुस्लिम कंट्रीब्यूशन पढ़ी, जिसमें से हमने पहले जाबर बिन हयान पढ़ा। इसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। इसके पास वेल स्टैब्लिश्ड लैब थी। इसने केमिस्ट्री में केमिकल प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाए और ये केमिकल्स इसने प्रिपेयर करवाए। अल-राज़ी की कंट्रीब्यूशन क्या है? इसने अबाउट मोर देन 26 बुक्स लिखी और इसने एक बुक लिखी अल-असरार, जिसमें इसने केमिकल प्रोसेसेस के बारे में हमें बताया है। और उसने केमिकल कंपाउंड्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया और उसने अल्कोहल को प्रिपेयर किया। अल-बेरूनी के पास केमिकल प्रोसेसेस और केमिकल कम्बिनेशंस का एक बहुत अच्छे से इल्म था अल-बेरूनी के पास। और इसने अपने बुक अल-सईदाना में 700 डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी बताए हैं। एंड ही डिटरमाइंड द डेंसिटीज ऑफ सब्सटेंसेस। एंड इब्न सीना को मुस्लिम दुनिया का अरिस्टोटल कहा जाता है। इसने ज़्यादातर मेडिसिन में कंट्रीब्यूट किया है और he was the first scientist who rejected the idea that base metals can be converted into gold, and he wrote many books which were taught in Europe for centuries, and he is known with the name Avicenna in Europe. और हाँ, that's it for today. और हाँ, जाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जिस दिन तुम अल्लाह के हुजूर पेश किए जाओगे, उस दिन तुम्हारी कोई बात पोशीदा ना रहेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जाते जाते सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट फॉर टुडे।